How are you, dear students? So, standard fourth. Myself, as you all know me, today, Mittal teacher, I am going to start with our unit 7. Okay, up to unit 6 we have done, and in your February unit test, unit 6 prose, that is scholars mother tongue, will be there from unit 6, and unit 7 this poem is there and one prose is there. Okay, so let us start doing our unit 7. Unit 7 poem. What is the name of our poem? A watering rhyme. What is the name of our poem? Watering rhyme. And this poem is written by P.A. Ropes. P.A. Ropes has composed this poem. Okay, ये poem को लिखने वाले हैं P.A. Ropes. So before we start our poem, let us discuss something. Children, what do you know about plants? Plants के बारे में आपको क्या पता है? So plants are also living beings as us. जैसे हम living है, उसी तरह से plants भी living है. So why plants are living? Why we can call them living beings? Why we can count them in living beings? क्यों वो living beings है? What is the reason? So जो हमारे अंदर, जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं, दे ऑल्सो ब्रीथ. जैसे हम ईटिंग मतलब कि फूड खाते हैं, दे ऑल्सो टेक फूड. ओके, जैसे हम ग्रो होते हैं, दे ऑल्सो ग्रो. जैसे हम भी अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपने जैसे दूसरे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर द रीजन व्हाई वी कैन कॉल द प्लांट्स आर living beings. Okay, so let us go through our poem. What is there in our poem? So let us start up with using our textbook. Okay, so what is the name of the poem? As I told you before, a watering rhyme. Okay, watering rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था. Let us do our second one. Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. So हमने पहले poem recite की. Now let us see the explanation of this poem. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. So in this first stanza, what poet is telling us, poet क्या बोल रहे हैं हमको कि he is telling us what is the proper time to watering the plants. plants को पानी देने के लिए proper time क्या है, तो यहाँ पे वो हमको बताया. तो according to our poet, the proper time to watering the plants are in the morning, early morning. जल्दी सुबह जब मॉर्निंग होती है तो जनरली 11 o'clock तक हम मॉर्निंग बोल सकते हैं. ओके, बट अर्ली मॉर्निंग क्या है? सो 5 o'clock, 6 o'clock अप टू 7 o'clock वी कैन से अर्ली मॉर्निंग. ओके, तो अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, या तो शाम का कोई एक घंटा 6 to 7. ओके, और 5 to 6, तो आर द टाइम्स टू वाटर. ये टाइमिंग है प्लांट्स को पानी देने के लिए. एवरी काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पानी देने के लिए इट इज प्रॉपर टाइम और इट इज बेस्ट टाइम. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है फर्स्ट स्टैंजा के, कि कौन सा टाइम इम्प्रॉपर है, विच इज नॉट प्रॉपर. ओके, विच टाइम इज नॉट प्रॉपर टू टू वाटरिंग द प्लांट्स. सो वाटरिंग एट नूनडे. नूनडे का मतलब क्या है? Yes, I have written here on the board also. You can see the middle of the day means कि हम आफ्टरनून बोलते हैं ना.
आफ्टरनून मीन्स के मिडल टाइम, मिड डे, मिडल टाइम होता है जो दिन का, दैट इज कॉल्ड नून डे. तो वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई, जब सन हाई है, हाई मीन्स के एकदम ऊपर है स्काई के, मतलब कि हमारे हेड के अप है. तो डजंट हेल्प द फ्लावर्स, वो फ्लावर को कोई हेल्प नहीं करेंगे. ओनली मेक्स देम डाई, ओनली दे डाई देम, what happened to flowers? Only flowers die. Okay, because of watering during the noonday or in the afternoon, what will happen? So it is not good for them to water. Okay, so let us see our second stanza, explanation of our second stanza. Also when you water at the roots. In first stanza, poet is telling us what is the proper time to watering the plants, and in the second one, poet क्या बोल रहे हैं कि कौन सी जगह पे हमको वाटरिंग, मतलब कि वाटरिंग करना है, फ्लावर के कौन से, इन विच पार्ट वी हैव टू पोर वाटर. ओके, कौन से कहाँ पानी देते हैं हम प्लांट को? यू ऑल नो इट वेरी वेल. यस, to the roots. Okay, at the roots we are watering. So also when you water at the roots, जब आप पानी दो plants को तो कहाँ देना है आपको? roots में. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. हम पानी कहाँ से पीते हैं? From where we are drinking water? From our mouths. हम mouth से पानी पीते हैं. But flowers का माउथ, क्योंकि फ्लावर्स कहाँ से पानी पीते हैं? फ्रॉम वेयर दे ड्रिंक वाटर? दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम वेयर वी आर वेयरिंग आवर शूज. हम जो जगह पे हमारे शू पहनते हैं, मतलब कि हमारे जहाँ फीट है, बराबर, तो फ्लावर जो प्लांट्स है उसका फीट कहाँ पे है? जमीन में है ना. सो वी कैन टेल दैट रूट्स आर द फीट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के फीट है. तो वी आर गिविंग प्लांट वाटर टू द फीट्स. ओके, प्लांट्स के फीट को हम पानी देते हैं. सोक द अर्थ अराउंड देम, वी सोक द अर्थ अराउंड देम, देन थ्रू ऑल द हीट. वो क्या करेंगे? जो जहाँ पे हम पानी देंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो सॉइल है उसके अंदर उसके रूट्स है. Okay, roots are the part of a plant which grow below the soil. Root कैसा part है प्लांट का? जो जमीन के अंदर होता है. And from there they are drinking water. So children, आपको पता है कि हम मुंह से पानी पीते हैं. We are using our mouth to drink water. फिर वो पानी पूरे बॉडी में जाता है ना. वो each and every part तक वो वाटर पहुँचता है. सेम उसी तरह से जो प्लांट है उसके रूट्स है, दे आर टेकिंग इन वाटर, वो पानी अंदर लेते हैं. एंड दे व्हाट स्टेम इज डूइंग, वो स्टेम है वो सारे पार्ट्स में पानी पहुंचाता है. सो देन थ्रू सोक द अर्थ अराउंड देम, जो अर्थ है जो प्लांट के अराउंड, वो सारी क्या कर लेगी? मिट्टी है वो पानी को सोक कर लेगी, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, टेक इन. ओके, देन थ्रू ऑल द हीट, सारी हीट है वो, गर्मी है वो दूर हो जाएगी. द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर द थर्स्टी फीट, और फ्लावर्स को किसके लिए पानी मिलेगा? उनके थर्स्टी फीट के लिए. ओके, सो दिस वॉज फीट, मतलब उसके कौन से फीट है मैंने बोला आपको. तो थर्स्टी फीट कौन से है? रूट्स, है ना, क्योंकि रूट्स मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि हाउ दे आर टेकिंग वाटर, दे आर सोकिंग वाटर और दे आर एब्जॉर्बिंग वाटर. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पोएम. सो लेट अस सी आवर न्यू वर्ड्स फ्रॉम द board. Children, let us start doing our new words of this poem. First one, hour. What is the meaning of hour? Time duration of 60 minutes. This hour is for time duration of 60 minutes. Okay. Second one, watering. Pouring water on plants for their growth. What is the meaning of watering? Watering is verb here. ये verb है. Okay. तो क्या है meaning उसका?
pouring water on plants for their growth. Okay, next is noonday. Noonday means the middle of the day, as I told you in the poem when I was explaining it, के noonday का मतलब होता है afternoon, the middle of the day, midday भी बोलते हैं हम, middle of the day. Okay, next is boots. What is the meaning of boot? A type of shoe. Shoe का type है that covers the foot and lower part of the leg. ऐसे टाइप का शू है जो फीट के साथ, शू हम पहनते हैं तो हमारे फीट कवर होते हैं, ओके, बट ये जो बूट्स है दे आर कवरिंग फीट एज वेल एज द लोअर पार्ट ऑफ द लेग. लेग का जो लोअर पार्ट है वो भी कवर करता है, दैट इज कॉल्ड बूट. Soak means made something wet by immersing it in liquid. किसी चीज को भिगोना बोलते हैं ना, भिगो के रखते हैं, that is called soak. Made something wet, किसी कोई चीज को गीला करते हैं लिक्विड के अंदर पोर करके, immersing, ओके, उसको उसके अंदर हम भिगो डाल देते पूरा, है ना, लिक्विड के अंदर, that is called soak. Next is heat. Heat means high temperature. High temperature, it is very familiar to you this word, but it is given in the textbook in new words, so I have written here. So let us see some other exercises from our textbook. From page number 116 we are going to start doing. First one, reading is fun. Let us discuss some question answers. What is the best time to water the plants? Plants को पानी डालने का proper time क्या है? आपको पता होगा है ना? Yes. So the best time to water the plants is during early morning or evening hour, है ना? So this was the answer. When should we not water the plants? Plants को कब पानी नहीं देना चाहिए? So we should not water the plants during noonday, मतलब कि afternoon. We should not water the plants during noonday. Next, which part of the plant should be watered? प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसको पानी देना चाहिए हमको? हाँ, कौन सा पार्ट है? सो वी शुड वाटर द रूट्स ऑफ द प्लांट. ओके, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड. ओके, ऑन पेज नंबर 116 योर वर्ड बिल्डिंग इज गिवन टू यू. आप देख रहे हो ये जो वर्ड्स है दे आर इन जम्बलिंग फॉर्म, वो उल्टे सुलटे करके दिए हैं. ओके, यू हैव टू अरेंज देम टू मेक अ नेम ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का नाम बनाने के लिए ऐसे अरेंज करना है जिससे आपको एक फ्लावर का नाम मिले. सारे लेटर्स आपको यूज करने हैं सो दैट यू विल गेट द आंसर. दिस थिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन. On page number 117 also, your exercise is given to you. It is a kind of activity or puzzle game. Here in blue block letters, some words are given to you. You have to find out these words in this grid. ये grid है ना, ये जाली, उसमें से आपको ये words है जो blue block letters में है, ये आपको find out करने हैं. Okay. Now let's talk. Do you have a garden at home? वो आपको अपने आप लिखना है. Name some flower which grow in your garden or near your house. आपके घर के पास या तो आपके घर के गार्डन में जो फ्लावर ग्रो होते हैं उसका नाम लिखना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके घर के आसपास बाजू में या पास में गार्डन हो या घर में गार्डन हो, बट अगर आप कोई पॉट में फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करते हो और उसमें जो फ्लावर आते हैं उसके नाम भी आप लिख सकते हो. एग्जाम्पल पेरीविंकल, मोगरा, रोज, you can write whatever flowering plants are there. Give another word for thirsty feet. यहाँ पे हमने पोएम के एंड में thirsty feet यूज किया है. thirsty feet means क्या? roots. तो here we have used for thirsty feet for roots. Okay. Next, what happen when we water plants in the morning? Choose one answer. मॉर्निंग में प्लांट्स को वाटरिंग करने से क्या होता है? They will grow well or they will dry up. दो ऑप्शंस है. So they will grow well. From where, next है, from where do flowers get water? Flowers को कहाँ से पानी मिलता है? So from the bottom. Bottom मतलब के नीचे से. दूसरा ऑप्शन है from the top.
तो ऊपर से नहीं मिलता, लीव्स में से नहीं मिलता, बट दे गेट द वाटर फ्रॉम द रूट्स. ओके, नाउ हियर वर्ड्स आर गिवन, से अलाउड. अर्ली, कर्ली, श्योरली, are, flower, flower, flush, shower, there, care, could, would, should, where, sit, shake, bread, spread, high, sigh. ओके, ये आपको भी प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे और वर्ड्स ये है जहाँ पे कुछ लेटर साइलेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है अपने आप. ओके, नेक्स्ट है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. वन हैज बीन डन फॉर यू. मॉर्निंग, इवनिंग, बोलने में जो लास्ट में जो हमको सेम लगते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग. कार, फार, हाई, शाई, हीट, सीट, बोट, बूट्स, शूट्स, रूट्स, ये दोनों से लिख सकते हो. वेयर, फ्लेयर, वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वेयरिंग ing से एंड होते हैं. राइट 6 words to which ing can be added at the end of form a new, at the end to form a new word. ऐसे तुमको 6 words लिखने हैं जिसको तुम ing लगा के एंड कर सकते हो. सो सिंग, सिंगिंग, बेयर, बेयरिंग, गेन, गेनिंग, पेन, पेनिंग, सी, सीइंग, लुक, लुकिंग, है ना. नेक्स्ट है, लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम व्हिच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो. आर, तो आर के लिए ARE है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है पोएम में? HOUR, दोनों के लिए RR बोलते हैं. देयर, THERE, देयर, तो यहाँ पे THEIR देयर है, देयर. नेक्स्ट है फ्लोर, फ्लोर के लिए क्या है? फ्लावर, FLOUR, फ्लावर मतलब जो आटा होता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लोर. और यहाँ पे फ्लावर, तो वो भी दोनों बोलने में सेम है. वेयर मतलब कहाँ पे, कौन सी जगह पे, और वेयर मतलब टू पुट ऑन, मतलब कि पहनना. सन, SON, सन, और SUN, सन. थ्रू, THREW, थ्रू, और THROUGH, थ्रू. यहाँ पे SON, सन है, और आपको लिखना है SUN, सन. ओके, यहाँ पे सन. ओके, in the sentence below the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. Put this in the correct place. ये आपको अपने आप करना है. We have done this thing in our grammar portion. So this was all about our poem, and apart from this you will be get every exercise in your PDF. So keep on learning. Thank you for now.